Good morning, dear students. I hope all of you are doing very well at this situation. I, Garima Dubey from RS Convent Sanic School, glad to inform you that we are all set for the new academic year of 2021, and I'm here to teach you computer. So, before starting the class, we will first talk about the introduction of the computer. So I will introduce you the word computer. So basically here you can see that the word computer has 8 letters and every letter has some stands for. For example, you can see that here the letter C stands for commonly, O stands for operated, M stands for machine, P stands for particularly, U stands for used for, T stands for technical, E stands for education, and R stands for research. So the word computer, the computer consists this much stands for. That is why we have abbreviated this common operated machine, particularly used for technical education research, as in computer. But now we will discuss that what is the literal meaning of computer. Actually, the literal meaning of a computer is a device that can calculate. So you can see that the literal meaning of a computer is a device that can calculate. Now we will talk about the modern era. In the modern era, that how we can define a computer. So basically a computer is what? Computer is an electronic device. What? It is an electronic device that can receive input. Now, how it can receive input? As you are well known about the two type of devices, that is input and output devices. Now, how you can give the input? You can give the input by either by the keyboard or by the mouse. So what you do, if you give input to the computer, first of all, what it does, it stored that data, and after that, according to the user. Now if you will tell the computer that how you have to give output to you, so accordingly it will process the input as per as user instruction. So what it does, it first receives the data, receives the input, and then it stores it, and then processes that input as per user instructions and provide output in desired format. So how you can define, so in modern era, how we can define the computer? So a computer is an electronic device that receive input, store it, processes that input as per user instruction to provide output. Okay. Now you can see that computer have become an integral part of our life. How it can become an integral part of your life? You can see that it can does the work easily. It does the work easily, very easily. The complex work which human cannot does, जो human नहीं कर पाते या human करते करते एक ही काम को बोर हो जाते हैं, लेकिन computer जो है वो कभी बोर नहीं होता, isn't it? It can do that work repeatedly. And in very easy way. Okay. So I think you are well known about the word the computer, and the definition of the computer in modern era, and how it has become the integral part of our life. That is clear to everyone. Okay. Now we will discuss about the input, about the input process output model. Now you will see here that how input process output model is based. Now जैसे कि आपको बताया गया कि कंप्यूटर इनपुट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा,
and the output obtained after processing it based on user instruction, जिसको हम क्या बोलते हैं, information. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसको नेमिंग दिया गया है कि जो कंप्यूटर का इनपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेटा बोलते हैं. एंड द आउटपुट मतलब उसको आउटपुट क्या होता है कि जब आप उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर, कि फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, यू कैन सी दैट एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर एग्जाम्पल दैट इज, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि 2 + 2 इज व्हाट, तो आपने क्या किया, यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने क्या किया, यहाँ पे आप 2 दिया, आपने बोला कंप्यूटर से, आपने क्या किया, आपने एंटर किया 2, देन आपने एंटर किया प्लस का साइन, है ना, प्लस का साइन थ्रू कीबोर्ड, एंड देन फिर आपने एंटर किया 2. तो वो आपने क्या दिया, आपने ये डेटा, आपने ये इनपुट किया, आपने इनपुट किया 2 + 2, आपने क्या इनपुट किया, 2 + 2 आपने इनपुट दे दिया ना. अब इसके बाद, अब से 2 + 2 के बाद क्या होगा, 2 + 2 आपने ये इनपुट दे दिया. अब क्या करेगा, आपको इसका आंसर चाहिए, आपको क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए. तो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट अब जो क्या करेगा, अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा. प्रोसेस कैसे करेगा, पहले वो 2 लेगा, पहले क्या लेगा, वो ये वाला 2 लेगा, ये वाला 2 लेगा, देन उसे क्या मिला कि अरे नहीं, नेक्स्ट इज प्लस, तो 2 प्लस देन 2, देन 2 + 2 इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 4, इट इज इक्वल्स टू 4. यू कैन सी दैट, है ना, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4. तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आउटपुट हुआ, क्या हुआ, यही हमारा क्या है, 4 इज आवर आउटपुट. ओके, so it is clear to everyone now. So we have discussed about the definition of the computer, and then we have discussed about the modern era, how we can define the computer, and also we have discussed about the input process output model. Now we will talk about the characteristics of the computer, ki why. So for now we will discuss about the characteristics of computer. So what are the characteristics of computer? That means कि why we are using the computer, why it is that much important for us. So we will discuss about those topics. ठीक है. So first point is speed. That that you are well known about it. That a human cannot do lots of work very speedily, but a computer can carry out so many work speedily. It can work in million seconds only. It can work in million seconds only. That is, whatever the instruction you give to the computer, it carry out that in 3 to 4 million per seconds. That particular instruction, it will take 3 to 4 million instructions per second. ठीक है, इतनी जल्दी वो काम करता है, बट हम ह्यूमंस इतनी जल्दी काम नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द एक्यूरेसी. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट. मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो मतलब एक्यूरेसी बेसिकली क्या होता है कि कितना एक्यूरेट आंसर है. फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स में क्या करते हो, जब आपसे पूछा जाता है कि यू हैव टू गिव द एक्यूरेट आंसर, दैट इज इन डेसिमल ऑल्सो, एवरी पॉइंट शुड बी करेक्ट. सो दिस एक्यूरेसी जो एग्जिबिट होती है कंप्यूटर में, वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होती है वो काफी हाई होती है. दैट इज, वो गलती कर ही नहीं सकता है. ठीक है, वो गलती कब करेगा, वो गलती तभी करेगा, मीन्स जो एरर होंगे वो कब अगर होंगे, वो जब हम इनएक्यूरेट डेटा अगर हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो ही वो मिस्टेक्स होती हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब अगर सही डेटा दिया हुआ है कंप्यूटर को तो वो क्या होगा, वो एकदम एक्यूरेट आंसर देगा. इजंट इट? मतलब ह्यूमन एरर्स नहीं होने चाहिए. अगर आप दे रहे हो तो उसको एक्यूरेट डेटा दो. अगर आपने इनएक्यूरेट डेटा दिया, ठीक है, अगर आपने इनएक्यूरेट डेटा दिया, देन ओनली उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी. रिलायबल, दैट मीन्स कंप्यूटर कैन कैरी आउट सेम टाइप ऑफ वर्क रिपीटेडली by without throwing up errors due to
टायर्डनेस। दैट मीन्स क्या होता है, रिलायबल का मतलब क्या होता है कि वो एक ही काम को बार बार कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्या करना है, आपको इसी चैप्टर को कम से कम 3 टाइम्स पढ़ना है, तो यू पीपल गेट बोर्ड। बट कंप्यूटर को अगर मैं बोल दूं कि नहीं, आपको 3 बार इसको मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे दूं बाय इनपुटिंग कि आपको ये चैप्टर 3 बार पढ़ना है, सो दैट वो क्या होगा, वो कभी बोर नहीं होगा, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? सो लाइक इन दैट वे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्सटिलिटी। वर्सेटाइल कंप्यूटर इज अ, ये जो होता है वर्सेटिलिटी, यू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर। दैट मीन्स कंप्यूटर कैन कैरी आउट वाइड रेंज ऑफ वर्क। दैट मीन्स कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारे वर्क एक साथ कर सकता है। वो डेटा एंट्री का काम कर सकता है, वो टिकट बुकिंग कर सकता है, वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कर सकता है, और वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है वो उसको स्टोर कर सकता है। आप देखते होंगे कि आप बहुत सारे टैब एक साथ खोले रहते हो ना कंप्यूटर में, कोई गेम खेलने के लिए ओपन किया रहता है, ठीक है, करते हो कि नहीं, कोई यूट्यूब से पढ़ने के लिए ओपन किया रहता है, इजंट इट, कोई अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ओपन किया रहता है, कोई कुछ करके, तो आप देखते हो ना बहुत सारे टैब ओपन होते रहते हैं, isn't it? तो आप उसमें बहुत सारे टैब ओपन किए, तो उसको तो एक साथ आपने बहुत सारे काम दे दिए। दैट इज वाई हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं कि वो वर्सेटाइल नेचर का होता है, ठीक है। अब आपके हम स्टोरेज की बात करते हैं, दैट इज लास्ट पॉइंट, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज मीन्स टू स्टोर समथिंग, दैट इज to store something in it. So in computer you can store a very large amount of data at a fraction of cost. और समटाइम आपको क्या मिलता है कि आप बहुत सारी डेटा को, ऐसे आपके कंप्यूटर में स्पेस होता है बहुत सारा कि आप इतना जीबी आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्या आप अपनी माइंड में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं भी आपको बोल दूं कि यू प्लीज स्टोर दिस थिंग, दिस वॉट एवर आई हैव टीच यू, प्लीज स्टोर इन योर माइंड, बट आप क्या करोगे, आज याद करोगे और फिर भूल जाओगे। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो उसको स्टोर करके रखता है, तो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है कंप्यूटर की वो काफी लार्ज होती है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है कंप्यूटर की वो काफी लार्ज होती है, उसमें बहुत तरह के फाइल हम स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, GIF, ठीक है, आप बहुत तरह की फाइल उस पे स्टोर कर सकते हो। So we have discussed about all the characteristics of the computer. Now, day after, tomorrow we will discuss about the computer languages. So as you are well known that what the language computer use. Like for example, we are talking to each other. That means a student and a teacher is talking to each other. So there is a medium that is a language. Language एक medium है जिसके थ्रू हम आपसे communicate कर रहे हैं. So like in that way only, how you and computer communicate, that we will discuss tomorrow in our upcoming lectures. So stay tuned, stay healthy, stay safe at your home. Thank you.